a founder who is nomad, remote working, living the life of the future. And thank you so, so much, Mayur, for giving me your time today. It's, I think, record करने के पहले जो हम इतने अर्धा तासपासून आपण वार्ता करत आहे ते पण अगर वो रिकॉर्ड किया होता हमने जो आधे घंटे से हम बात कर रहे हैं इज व्हाट आई सेड तो वो एक अलग लेवल का ही कन्वर्सेशन होता बट आई एम प्रिटी श्योर आप लोग को बहुत कुछ सुनने जानने और सीखने मिलेगा आज के पॉडकास्ट में सो थैंक यू अगेन मयूर फॉर गिविंग मी योर टाइम टुडे आई एम ट्राइंग नॉट टू से सर आई एम वर्किंग ऑन इट Yeah, thanks, Shruti, for inviting me. Yeah, for sure. Whatever we spoke about, we instantly connected and spoke about before recording this. Could yes have been a podcast in itself, right? Uh, but but happy to be here and happy to share my journey, share my you know vision for the kind of world I want to build for my kids, the kind of lifestyle I live, and I you know want to enable more people to live it. Happy to be here and share all of that. Thank you so much. Seriously. You yourself run a podcast of your own, which is based on travel and remote working and nomadic living and everything. So when I came across you on LinkedIn, you, I'm sorry, don't get me wrong. You look like a buffet of asking all sorts of questions. Like literally, I have all major topics that I want to ask you, and please consider these topics as, a starter point for our conversation because we need to start from somewhere, right? So I have Right. created like three sections for this conversation, or three topics, or three pointers, because you have seen it all, kind of. Uh, Not trying to flatter you or anything, but you have actually seen a lot of things. You have worked your corporate life. You are raising your kids like global citizens, right? You are homeschooling them. There's so much to learn from you. So आज का conversation बहुत special होने वाला है people, and I hope you enjoy this. So my first question for you is, you are a CFA, right? And in India, when I look at friends and colleagues, the one constant thing that I hear from them after a CA degree or a CA thing is CFA बहुत difficult होता है. It's not very easy to crack. Or maybe the third वाला thing is, very difficult. So can you help people who are listening to you or who are aspiring to be CFAs, help them understand the secret sauce for it, if there is one? Um, so I got my charter back in 2018. And immediately after that, I left finance and traded for a career in hospitality, right? So, and a lot has changed in past 5 6 years in financial system. But when it comes to cracking something which is considered difficult, considered something that takes time to crack, I think there is no secret sauce, right? It's all about keeping those goals in front of you. एक गोल बना के रखो सामने, प्रैक्टिकली सोचो। बुकिश नॉलेज, बहुत लोग सोचते हैं कि चलो किताबें पढ़ने से और रट्टा मारने से हो जाएगा, पर सीएफए एक ऐसा क्वालिफिकेशन है जिसमें थोड़ा प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है, क्योंकि अ, उसमें ऐसा नहीं है कि सिलेबस से क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन भी कैसे आड़े टेढ़े आ जाएंगे, तो उसका जवाब देने के लिए तो आपको सोचना पड़ेगा। तो बस सोचो, लर्न हाउ टू लर्न, वर्क हार्ड, एंड you'll be there. आई थिंक दिस इज हाउ एजुकेशन शुड बी, राइट? आई मीन हम थोड़ी देर पहले भी जो बात कर रहे थे कि हमें वो सीखना है, सिखाते ही नहीं है वो जो होता है ना कि आप सीखें कैसे, आप समझे कैसे। आई थिंक आफ्टर यू ग्रेजुएट और वर्क एट कॉर्पोरेट फॉर सम इयर्स, यू रियलाइज कि आपको बहुत कुछ अनलर्न करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जो भी सिखाया गया था वो सब, सॉरी, बुलशिट है। सो आई थिंक जो आप बोल रहे हो, मेरे हिसाब से सीएफए जैसा एजुकेशन सिस्टम इन जनरल होना चाहिए, राइट? जहाँ ऐसा नहीं है कि हाँ, जो इस लाइन पे पैराग्राफ था उसी में से चीज पूछी जाएगी और वही रट्टा मार के आने वाला है। एजुकेशन को तो ऐसा ही होना चाहिए। आई वंडर इफ आई कैन Uh, डू
तो मैं जब स्कूल में था, कॉलेज में था, तो मुझे भी यही लगता था कि यार ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ, इसका एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ यूज होगा मुझे। ये नहीं पढ़ा तो क्या मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ये सब चीजें मैं सोचता था। आ, और तब से लेके अभी तक वही मेरा थॉट वही है कि यार करियर बनाने के लिए या कुछ सीखने के लिए ना क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक पहले तो सीखो कि कैसे सीखना है ना। बहुत लोगों को यही नहीं पता है कि उन्हें, चलो उन्हें एक चीज सीखनी है तो उसे अप्रोच कैसे करें। क्या कोर्स लेके सीखा जाए, या कोई मेंटर पकड़ ले ये सीखा जाए, या कोई सर्टिफिकेशन कर ले सीखा जाए। मोस्ट पीपल थिंक दैट चलो कोई यूनिवर्सिटी में ज्वाइन कर लिया या कोई कोर्स कर लिया तो सब कुछ मिल जाएगा, सीक्रेट सॉस आ जाएगा आपके हाथ। अ, पर जो पढ़ा रहे हैं वो भी कहीं से तो सीखे ही होंगे, है ना। अ, तो अगर वो कहीं से सीखे हैं तो आप भी वही सोर्स पे जाके सीख सकते हो, है ना। अ, तो वो तो अल्टीमेट सोर्स है नहीं जिनसे आप सीख रहे हो। तो असली सोर्स क्या है, गूगल करो, गूगल से पता चलेगा कि सपोज आपको एआई के बारे में पढ़ना है या बिटकॉइन के बारे में पढ़ना है सपोज, तो पहले जाके वो सातोशी वाला वाइट पेपर गूगल से फाइंड आउट करो, वो पढ़ो, वो पता चल जाएगा आपको कि कंसेप्ट क्या है। या आप, किताबें बहुत है, किताबें ले लो, किताबों से आपको अलग अलग व्यू पॉइंट्स मिल जाएंगे, अलग अलग ऑथर्स के, प्रैक्टिशनर्स के। तो लर्निंग हाउ टू लर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो केजी में या फर्स्ट स्टैंडर्ड में सब्जेक्ट होना चाहिए कि भाई सीखे कैसे। तो इसी को लेके एक्चुअली मैं और मेरी वाइफ हमारे 3 बच्चों को अनस्कूल कर रहे हैं। होम स्कूल बहुत सही में बात है। ज्यादातर होम स्कूल वर्ड यूज करता हूँ, पर आपने अनलर्निंग यूज किया तो मैं बोलना चाहता हूँ कि हम उन्हें अनस्कूल कर रहे हैं। द आइडिया इज कि आज के जमाने में जब चीजें इतनी इनोवेट हो रही है, इतने तेजी से चेंज हो रही है, उस जमाने में जो आज आप सीख रहे हो कल तो पता नहीं वो यूजफुल है कि नहीं, है ना। तो उससे अच्छा उन्हें ऐसी सिखाई दे दो, ऐसी पढ़ाई दे दो कि नेचर से सीखे वो चीजें, या उन्हें जो अंदर से अच्छा लगता है कि मुझे ये करना है वो सीखे। हम बस उन्हें रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो वो अभी वो राइटिंग का कोर्स कर रहे हैं, वो खुद का बिजनेस बना रहे हैं। 11 साल के मेरे ट्विन बच्चे हैं, वो ब्रेड बेक करते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर लेके बेचते हैं। तो मैं जब 11 साल का था और मैं कुछ करना चाहता शायद, आ, चलो मेरा तो फैमिली का छोटा सा दुकान था, तो मैं बचपन से दुकान में बैठता था ये सब। पर बहुत सारे बच्चों को अगर 11वें साल में अगर वो कुछ कर रहे हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं ये क्या कर रहे हो, पढ़ाई करो। पर यही आगे पढ़ाई करके बाद में सही यही करना। तो करना है, बेचना है, लोगों से बात करना है, फिर डिजाइन बनाना है कैनवा में। तो क्यों ना अभी से उन्हें वो लर्निंग मिल जाए, है ना। राइट, राइट। आ, तो बस मैं इसके बारे में भी बहुत कुछ बात कर सकता हूँ। नहीं नहीं, पर आप बहुत सही बोल रहे हो। इनफैक्ट थैंक यू, आप अपने बच्चों के होम स्कूलिंग वगैरह पे आए, क्योंकि मैं पूछने ही वाली थी व्हेन वी वर एट द टॉपिक ऑफ एजुकेशन। एंड आई थिंक आपके बच्चे इतने लकी हैं कि आप उनको वैसा फ्रीडम दे रहे हैं, बिकॉज आप जो ये बोले ना कि बाद में भी तो उनको ये करना है। आई थिंक ग्रोइंग अप इन मुंबई और द एरिया आई एम इन, गुजरातीज मारवाड़ीज यही करते हैं, अपने बच्चों को बहुत यंग एज से अपने जो उनका दुकान या गल्ला होता है उधर बिठाना शुरू कर देते हैं। उनको वही करना है, तो उनको पूरा ट्रेनिंग उनके खून में होता है, बिकॉज वो दिन रात वही सब सुन रहे हैं। सो आई एम विथ ह्यूज रिस्पेक्ट गिविंग दैट कम्युनिटी एज एन, यूजिंग दैट कम्युनिटी एज एन एग्जाम्पल, क्योंकि आपने जो कहा वो सही है कि जब आगे हमें बिजनेस करना है, सेल्स करना है, या जो भी करेंगे, सेल्स तो आने ही वाला है। तो अगर आपके बच्चे को अभी से सीख रहे हैं, दैट इज द बेस्ट थिंग। 11 साल की उम्र में, वाओ, दिस इज अमेजिंग सीरियसली। They are very lucky to have you. नो नो, आई एम ऑल्सो लकी टू हैव देम। सी हमें लगता है ना एज अ पेरेंट कि हमें ज्यादा पता है अपने बच्चों से, पर अगर आप देखोगे तो हर नया जनरेशन स्मार्टर, दे आर स्मार्टर, दे कैन थिंक बिगर।
तो उन्हें वो फ्रीडम देनी चाहिए, है ना, एज अ पेरेंट। इट्स द लिस्ट आई कुड डू, टू गिव देम द फ्रीडम टू लर्न व्हाट दे वांट टू लर्न। कि बाद में जाके ये ना हो। हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक तो एक प्रॉब्लम मुझे लगता है कि जब तक बच्चे 22, 23, 24 साल के नहीं होते, उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या करना है लाइफ में, हाँ है ना। रैट रेस में जाके या तो इंजीनियरिंग बन गए। अभी अभी चीजें थोड़ी चेंज हो रही है, हाँ पर पर वो जो ब्रीदिंग स्पेस है बच्चों को चाहिए, जो कि डिसाइड करने के लिए कि आगे क्या करना है, राइट। वो टीनेज में मिलना चाहिए। वो नहीं मिलता है लोगों को। गैप ईयर ले लो, टीनेज में गैप ईयर ले लो, दुनिया घूमो, बैकपैकिंग करो, वॉलंटियरिंग करो हॉस्टल्स में जाके, पता चलेगा दुनिया क्या है। फिर पता चलेगा आपको क्या, ये दुनिया में आपको क्या बदलाव लाना है, क्या अच्छा करना है आपको। करेक्ट। पता है वो गैप ईयर भी एकदम टैबू वाली चीज है कि मतलब फिर वो समझता है कि बच्चा भोंदू है या फेल हो गया, मतलब इतनी सारी जो सोसाइटी की वजह से रिस्ट्रिक्शंस आती है ना सर मयूर की, मतलब बच्चा बेचारा ये हो जाता है कि करना क्या है। मुझे ऐसा लगता है ना स्कूल कॉलेज वगैरह में हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि आगे कॉर्पोरेट में या बिजनेस में तुम्हें भी कैसे उस रेस में घुसना है। स्कूल भी पूरा रैट रेस ही था, आपको वही एक माइंडसेट में डाले रहता है कि ये टेम्पलेट है यही करना है, ये वो भी कर रहा है ये तुम भी करोगे और यही चलने वाला है। कभी वो फ्रीडम ही नहीं दी कि हमें पता हो। मुझे कभी कभी लगता है ना इंडिया नीड्स टू गेट बैक दैट गुरुकुलम सिस्टम जो हम सुनते आते हैं कि कभी कुछ हुआ करता था, वेर किड्स जाते थे और गुरु के पास रहते थे सीखते थे। बिकॉज थोड़ी देर पहले जैसे आप बोल रहे थे ना, अगर मुझे पता नहीं है तो मैं कैसे सीखूं, कोई मेंटर के पास जाऊं। आई थिंक हमारा एक बहुत ट्रेडिशनल वैदिक वे जो चीजों का था, कुछ चीजें अच्छी रही होंगी अगर वो सस्टेन कर गई होती, तो ऐसा लगता है मुझे। एंड व्हाई नॉट हैव सम ऑफ दीज थिंग्स जस्ट रिवाइव फ्रॉम द पास्ट। बिल्कुल। तो आपने बोला ना कि गैप ईयर एक टैबू है। मैं 12th में फेल हो गया था, ठीक है। क्योंकि मुझे, अगेन सेम रीजन, कि मुझे पता ही नहीं था मैं क्यों पढ़ रहा हूँ जो पढ़ रहा हूँ। आगे जाके इसका करूंगा क्या मैं। तो मैंने पेपर आधा छोड़ के मैं निकल गया था बोर्ड के एग्जाम्स में, ठीक है। इट टेक्स करेज टू से दैट, सीरियसली बाउ डाउन। वाओ। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग हैपन टू मी। क्योंकि क्या हो गया उसकी वजह से मुझे, आई वॉज 16, 17, 17, 18, या राइट। उसकी वजह से मुझे एक साल मिल गया सोचने के लिए कि यार मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है, क्या चीजें हो सकती है। अगर मैं फेल नहीं होता तो मैं कहीं इंजीनियरिंग में घुसा होता, फिर वही रैट रेस में घुस जाता। फेल हो राइट। गया तो मैंने जो, मुझे पता था फेल होने वाला हूँ, पर घर वालों को बताया तो था नहीं मैंने कि चलो भाई ये कोई फेल तो पिक्चर होने की वाला हूँ। स्टोरी हो सकती है सर, सीरियसली इस पे पिक्चर बननी चाहिए आपके लाइफ पे। तो एग्जाम और रिजल्ट के बीच में 2 ढाई महीना जो था ना, मैंने घर वालों को कन्विंस किया कि यार ये तो फ्री टाइम है, ये टाइम तो मेरे पास आने वाला है नहीं वापस। तो हाँ, मैं एक पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ। पहले तो शॉक हो गया, और क्या, नहीं, हाँ। चाइल्ड लेबर। हाँ राइट, हाँ। पर मैंने कन्विंस कर दिया। फिर वो 2 महीना मैंने एक डोर टू डोर मार्केटिंग का जॉब पकड़ा, ठीक है, हाँ। जिसमें मुझे जितना भी बेचूं उस पे 25% कमीशन मिलता था, ठीक है। अरे भाई अ, मस्त, हाँ। और ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ दैट वाज कि मुझे चीजें गांव गांव में जाके बेचनी थी। मैं कोल्हापुर में पला बड़ा, तो कोल्हापुर के आसपास जो भी गांव है उधर जाके चीजें बेचनी थी, क्योंकि उनको मार्केट एक्सेस नहीं रहता है हाँ ना। तो उनके राइट। पास कोई जाना चाहिए तब वो जाके खरीदेंगे। राइट। आ, तो उसमें मुझे, एक तो मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकला, राइट। ठीक है। मैं सुबह जाता था बस स्टैंड, जो भी पहला बस मिले वो लेके, जो भी पहला गांव आए, विद इन हाफ एन आवर डिस्टेंस, 1 आवर डिस्टेंस, उधर जाता था। उधर जाके गांव वाले लोगों को मैं आ, क्या बेचता था, दंत मंजन, ठीक है। ओके। ओके। आ, फिर आई ग्रो अप एज एन इंट्रोवर्ट, पर वो जॉब की वजह से क्या हुआ कि मुझे लोगों से बात करनी पड़ती थी, है हाँ। ना। वो हाँ। भी गांव में रहने वाले लोग जो, जिनकी नीड्स कम है,
उनको जाके बेचना है मुझे कुछ चीज, राइट? तो मुझे हाँ, बात करनी पड़ती थी, उससे मैं सीखा लोगों से बात, स्ट्रेंजर लोगों से बात कैसे किया जाए। राइट। फिर सेल सीखा, स्ट्रेंजर लोगों से बात करना सीखा, जो सीक डिस्कम्फर्ट वाला, लाइक गेटिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, यस। ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग टू फ्रीडम। प्लेस जस्ट और आउट ऑफ विम्स एंड फैंसी, ये सब ऑल द सीखा उससे फ्रीडम। मैं, राइट। अब तो उसमें मुझे ये, वो 2 महीने में श्रुति मुझे ये पता चल गया कि यार मुझे नेचर पसंद है, मुझे गांव पसंद है, मुझे गांव वाले लोग पसंद है, वो कितने सिंपल प्यारे रहते हैं, कुछ कंपटीशन तो है ही नहीं, कोलैबोरेशन है। तो जो जो जार्गन्स है ना, जो बाद में हम जाके सीखते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं, कोलैबोरेट वगैरह, वो तो कहाँ से आया? वो ह्यूमैनिटी, कम्युनिटी। अगर गांव में ही तो कम्युनिटी, कम्युनिटी है। एग्जैक्टली exactly. तो सैपियंस बुक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि यार ये, इसी की वजह से तो हम सरवाइव किए एज अ करेक्ट। ह्यूमन रेस, राइट? तो वो फेल होने का जो टाइम था ना, उसमें मैंने एक स्टार्टअप भी किया बाद में, रिजल्ट आने के बाद। आ, ठीक है। जब वो बॉम्ब फूटा कि आ, फेल हो गए, तब घर पे क्या हुआ? सॉरी मैं। घर पे पापा ने तो मुझसे बात ही नहीं किया कुछ महीनों तक, आ, क्योंकि उसमें मेरा भी फॉल्ट था, खैर, कि मैं कुछ ज्यादा ही एक्सपेरिमेंटल फेज में था, कि मुझे नहीं, मुझे जानना है कि मुझे क्या करना है लाइफ में। और पापा बीइंग पापा, ही केयर्स फॉर मी, तब उन्हें लगता था कि यार ये तो करियर कैसे होगा, वो स्ट्रेस में थे, है ना? उन्होंने भी, फैमिली बिजनेस हमारा स्प्लिट हो गया था, तो नया बिजनेस चालू किया था एट द एज ऑफ 50। हाँ। तो उनके पास भी एंग्जाइटीज थी, उनके मन में भी एंग्जाइटीज थी, है ना? और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन माय जर्नी ऑफ फाइंडिंग माई सेल्फ, मैंने थोड़ा ओवरलुक किया जिस फेज में उन्हें थोड़ा हेल्प चाहिए था मुझसे, वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कुछ अलग ही सोच रहा था। हम्म। पर एट द एंड ऑफ द डे, यू नो यू आर a combination of all the life experiences that you have had, right? यस। So without that failure, I wouldn't be where I am today. नहीं, आई सीरियसली रिस्पेक्ट यू इवन मोर कि आपने, पता है, ऐसी कोई चीज एडमिट की एक इंटरव्यू पे, पॉडकास्ट पे। कौन बताता है? कोई नहीं बताता है। बट सीरियसली, दिस दिस ऑल योर एक्सपेरिमेंटेशन हैज व्हाट हैज गॉटन यू हियर। इनफैक्ट आपने जब वो गांव वाला चीज भी बोला ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपका गांव से कनेक्शन तभी से बनना शुरू हो गया था। सो ये वाली जो चीज आप अभी कर रहे हो उसके उसकी सीड्स पहले ही कभी डल गई थी, आई थिंक, एंड यू जस्ट वेंट बिलकुल बैक टू बिलकुल इट। बिलकुल. तर श्रुती, कोल्हापुरात राहण्याचा फायदा एक होता की नेचर, म्हणजे 10 मिनिटं ट्रॅव्हल करून गेलं तर यू आर इन द मिडल ऑफ नेचर. यस। सो having born in Kolhapur gave me that, I was born with a silver spoon, right? Silver spoon of nature, or a green spoon to be precise. uh, so the nature was always there in my heart. Another thing from my, from my school days was, as I said, I grew up as an introvert. That means things that I was very comfortable with was books, magazines, and सोलो it's ट्रैवलिंग। just that. सोलो ट्रैवलिंग, तब तो पैसे नहीं थे, सोलो ट्रैवल करके कहाँ हाँ, वो जाएंगे, भी होता है है। ना? यस, करेक्ट। अ, पर बुक्स और मैगजीन्स, चीजें जिसमें मैं अपने साथ टाइम बिता पाऊँ, ऐसी चीजों से मैं बहुत कंफर्टेबल था। तो मैं क्या करता था स्कूल टाइम में, सेकंड हैंड बुक्स की दुकान से मैं बहुत सस्ते में, मतलब 4 रुपया पर कॉपी से पुरानी ट्रैवल मैगजीन्स लाता था। अ, ठीक है। अ, फिर लोनली प्लैनेट ऐसे ही हाँ, 10 रुपया हाँ, हाँ। 15 रुपए में मिल जाती थी, ओके। छोटी छोटी किताबें, सेकंड हैंड बिल्कुल, जिनका पेजेस वगैरह थोड़े थोड़े निकल के है, ऐसे समझ टाइप गई। के। हाँ। फिर रेलवे का ट्रेन एट अ ग्लांस बोल के एक बुक आता था, ओके। ठीक है? तो वो कहीं से मुझे मिल गया था।
तो ये सब चीजें लेके मैं अराउंड 8 9 में था तब। बस मैं ड्रीम करता रहता था कि चलो हाँ। एक मैगजीन का एक पन्ना खोल दिया, जो जगह दिखी उसके बारे में पढ़ लिया। अरे आ, सो फिर सो वो किधर है मैप में देख लिया। आ, उधर ट्रेन से कैसे, इंडिया में अगर हो तो ट्रेन से कैसे जाए वो ट्रेन एट अ ग्लांस से पढ़ लिया। और उसी टाइम पे इंटरनेट जस्ट आने लगा था, है ना। तो लाइक दिस वाज 98 99 गॉट 2000 इट। 1998 1999। ओके। तो उस टाइम पे इंटरनेट से भी थोड़ा सर्च करके, याहू सर्च करके पता चल जाता था कि अरे ये जगह ऐसी है, ये जगह इधर है। मतलब जो आज के तारीख में तो मैं गूगल मैप पे जा जाके कि अच्छा ये कैसे कैसे जाऊं क्या करूं, वो आप उस टाइम के सेटअप के हिसाब से करते थे, है ना? हाँ, मतलब उस टाइम पे रिसोर्सेज बहुत लगते थे बट इधर उधर। एग्जैक्टली। पर अभी तो लोग जब जाना है तब करते हैं, तब तो मैं ऐसे ही करता था वेले में, क्योंकि मैं भी पैसे तो थे करती नहीं हूँ। ट्रैवल करने के। सॉरी, ट्रैवल करने के पैसे। आई आई कनेक्टेड विथ यू। मैं भी कभी कभी करती हूँ, अच्छा कौन सी जगह कैसे जाऊं। तो एज ट्रैवल करने के पैसे नहीं थे, पर ये मेरा फ्यूचर प्लान था, ठीक है, कि जब पैसे आएंगे तब ये करेंगे। तो आई स्पेंट लॉट ऑफ टाइम जस्ट ड्रीमिंग, और जस्ट मे बी बिल्डिंग द फाउंडेशंस ऑफ नोमैड इन मी, राइट। कि आई थिंक अगर इंट्रोवर्ट होना आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी, और आप अपना ऑलरेडी विजन बोर्ड, गोल बोर्ड, आजकल जो लोग बहुत फैंसी टर्म्स बताते हैं ना कि एक होना चाहिए फिर ये करेंगे, आई थिंक इट वर्क फॉर यू। एंड पता है, मैं खुद समझना चाह रही थी कि आपने इतना जॉब किया है, काम किया है, पढ़ाई किया है, एंड सीएफए किया है, उसके बाद भी आप सब कुछ छोड़ के अपना कुछ करने का क्यों आपको मन किया? वॉज इट बिकॉज ऑफ द पर्सन दैट यू आर, या फिर मतलब क्या आपको वापस आया कि आपका मन हुआ कि अपना कुछ करना है? एंड हाउ डिड यू ऑल्सो गेट द इनिशियल कस्टमर्स? मेरे को ना एक पॉडकास्ट मेरे सुनने वाले व्यूअर ने बोला था, प्लीज पूछा करो कि पहले कस्टमर कैसे मिले, सो दिस इज फॉर हिम। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका आंसर बहुत लंबा है, कोई क्योंकि बात नहीं। आई थिंक ये इतने ग्रे हेयर आ जाते हैं ना, तब हर चीज का आंसर लंबा हो जाता है, बहुत हम स्टोरीज इसका रहती है पार्ट लाइफ टू में। पार्ट थ्री सब कर सकते हैं पॉडकास्ट का, कोई हो दे खर्च सर, कोई लोड लेने का जरूरत नहीं है, आप बस बताओ, इतना या मजा आ रहा है सुनने में। तो एज ए सेड, मैंने मेरा पहला स्टार्टअप में जब फेल हुआ तब किया। स्टार्टअप क्या, बेसिकली हम क्या करते थे, टी शर्ट प्रिंट करके कस्टमाइज करके बेचते थे राइट। हाँ। इन कोल्हापुर। ओके। दिस वाज बैक इन 2004, विच वाज अ इलेक्शन ईयर। तो हमने क्या किया, ये पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिशियंस के लिए भी टी शर्ट प्रिंट करवा के बेच दिए, ठीक है। तो तब से दिमाग में था कि यार मजा आता है ये ऐसा कुछ करने में, खुद के ही आइडियाज लड़ाने में। वो हमने कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि मेरे दो दोस्त थे, फिर वो इंजीनियरिंग करने चले गए, फिर मैं भी समहाउ आई वाज सोशली कंडीशनड ना, फेल भी हो गया, रेबल भी था, फिर भी भाई ग्रेजुएशन तो करना ही है। तो करेक्ट। मैंने भी एडमिशन ले लिया यूनिवर्सिटी में। फिर क्या हुआ, 2009 में, अगेन अनदर पिवोटल ईयर ऑफ माय लाइफ, आई वाज लर्निंग। 2008 2009 आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर एन एमबीए, कैट की तैयारी कर रहा था मैं। uh, तो तब क्योंकि मैं कोल्हापुर में बैठ के तैयारी कर रहा था, कोल्हापुर में तो कैट पढ़ाने वाला कोई था ही नहीं तब, राइट। तो तो मैंने एक ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया। उससे मुझे आइडिया आ गया कि यार ऑनलाइन क्लास क्या बढ़िया चीज है। तब तक तो इंटरनेट का ऐसा सब यूज जो नहीं करता। बेनिफिट है ना, वो पूरी तरह से समझ में नहीं आया था 2008 तक। हम्म। और कोल्हापुर में था बीएसएनएल डायल अप कनेक्शन, तब ब्रॉडबैंड था नहीं तब। अ, पर तब लगा मुझे कि इसमें कुछ किया जा सकता है, दिस इज द फ्यूचर, लोग ऐसे ही सीखेंगे बाद में। करेक्ट। अ, ठीक है, इससे मिला रहने वाले लोगों को कितना बेनिफिट है।
करेक्ट। ऑनलाइन सीखने से, उन्हें दुनिया भर के बेस्ट टीचर्स से सीखने मिल रहा है। तो हमने 2008 2009 के अराउंड, मैंने और अगेन दो तीन दोस्तों ने मिलके एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाने का सोचा। और हमने क्यों सोचा? क्योंकि मुझे फॉरेन लैंग्वेजेस में इंटरेस्ट था। तो मैंने सोचा यार मुझे कुछ सीखना है, और अगर टीचर लोकली अवेलेबल नहीं है कोई लैंग्वेज का, तब तो मैं सीख ही नहीं पाऊंगा, है ना। आ, हाँ। तो क्यों ना हम इसको ऑनलाइन लाए। हम्म। तो हमने उसमें 5-6 महीना डाला, ऑनलाइन लर्निंग मतलब उस टाइम का एक डुओलिंगो प्लेटफॉर्म जो बना। आज के टाइम में वो डुओलिंगो वाला ऐप है टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस, उस टाइम पे आपने उसका बेसिकली वर्जन बनाया ना? हाँ, मतलब बैक इन 2008 2009। तो पर वो चला नहीं, क्योंकि बहुत लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं था घर पे, जो टीचर लोग भी है उनके पास भी नहीं था। अ, और इट हम वॉज वे थे। अहेड ऑफ इट्स टाइम, थोड़ा टाइम के पहले हो गया, आ, हाँ, बोल सकते हैं। है ना? आ, हाँ, और ये भी है कि जस्ट टू बूस्ट माई ईगो, हम बोल सकते हैं कि यार हम तो टाइम से पहले थे, बट बहुत लोग टाइम से पहले थे, है ना। पर लोगों ने रेजिलेंट रह के चीजें कर ली वो टाइम आने तक, है ना। हम्म। पर हमने गिव अप कर दिया बीच में, राइट। हमने वेट नहीं किया कि ये जाके इंटरनेट इम्प्रूव होगा तब ये अच्छे से चलेगा। हमारे पास पेशेंस ही नहीं था। तो वो चीज मैंने वो एक्सपीरियंस से सीखी कि जब मैं अभी नोमैड का बिल्ड कर रहा हूँ, मुझे पता है कि इसको टाइम लगेगा भाई, ये कल्चरल चेंज है। करेक्ट। पर नाउ आई एम कूल विद इट। पर उस टाइम पे तो 2008-9 आई वाज 23-24। जल्दी से हाँ, एक वो जल्दी से सब, उस टाइम पे बहुत ज्यादा हाइपर एनर्जी था कि इनफैक्ट नहीं। दैट वाज इवन अ पिवटल ईयर फॉर मी, आई वाज डूइंग माय इंजीनियरिंग, और पता है लोग इंटर्नशिप करते थे पर मुझे था कि मैं कुछ अपना बनाऊं। आई एम सॉरी बट मुझे बहुत बोलने की इच्छा हो रही है। तो मैंने अपना एक ई टिफिन सर्विसेज का आइडिया लाया कि मुंबई में जो लोग रहते हैं, बहुत से बच्चे आते हैं, बाहर से लोग आते हैं काम करने, घर का खाना मिस करते हैं। सो आई कैन कनेक्ट द डब्बा वालाज विथ वो जो आंटी वगैरह होती है जो घर का खाना बनाती हैं। सो आई बेसिकली क्रिएटेड द ऐप, सबमिट किया, सब हो गया, अच्छे नंबर भी आ गए, मेरी प्रोफेसर बोली भी इसको लाइव कर, पर वही मिडिल क्लास मेंटालिटी आता है ना, पैसा कहाँ है, कैसे इसको सर्वर पे होस्ट करूं, कैसे ये चलेगा। तो अगर मैंने वो कर लिया होता तो आज मैं स्विगी जोमेटो की मम्मी होती शायद, बट वही वाली चीज होती, क्या बोलने का, इट्स आई हाँ, आई फील मतलब यू। सी अगेन दैट इज सोशल कंडीशनिंग, राइट। यस। लोग गिव अप क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें फ्यूचर का चिंता रहता है कि भाई चला नहीं तो क्या करेंगे, या इसको बड़ा करने के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे, अरे वो सब है बना ना। लिया था, पता है, बस उसको होस्ट कैसे करूं, इतनी सी चीज के लिए मुझे था कि पैसा कहाँ से आएगा, उसको कैसे कैसे खर्चा हम मेंटेन करेंगे, वो ना, क्या बोलने का, सॉरी बट हाँ, सो दैट 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 इज इट, बट आप बता रहे थे अपना, सॉरी। या तो तब से दिमाग में था ही कि एंड आई ग्रो अप इन अ स्मॉल बिजनेस फैमिली, राइट। तो बिजनेस मैंने बचपन से देखा है, मतलब बिजनेस क्या, दुकान था बेसिकली। तो मैंने वो देखा है, राइट। वो हसल, उसमें मजा भी आता है, उसमें मुंह में टेंशन भी होती है, मजा भी आता उतार है, चढ़ाव स्ट्रेस भी भी रहता रहेगा है, पूरा। हाँ। राइट। और एज समवन विथ लॉट ऑफ आइडियाज, मुझे लगता था कि यार मुझे अपने आइडियाज पे अगर दूसरे किसी ने काम करने नहीं दिया तो मुझे ही करना पड़ेगा, हाँ। है ना। आ, तो 2014 में मैंने रिमोटली काम करना चालू किया। फिर हाँ, वो जो पुरानी ट्रैवल मैगजीन्स वाली फोटोज प्लान्स वगैरह थे, सब वो निकले। मुझे लाइव करने का मौका मिल गया, है ना, जीने का मौका मिल गया। फिर मैंने अगले 3 साल, 3-4 साल तक इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में काफी जगह पे घुमा अपने लैपटॉप पे काम करते हुए। आ, ठीक है। 5 दिन जम के काम करता था अमेरिकन स्टार्टअप के लिए, रिमोट टीम्स बिल्ड कर रहा था, मैनेज कर रहा था, फाइनेंशियल एनालिस्ट की। वो मेरा फाइनेंस वाला करियर था। फिर फिर वीकेंड्स पे एक्सप्लोर करता था। आ, उस टाइम पे दो चीजें हो गई। एक तो आई फाउंड माई की गई, है ना।
तब मुझे पता चला यार मुझे ट्रैवल के रिलेटेड कुछ करना है लाइफ में। आ, मुझे, क्योंकि इसमें मुझे मजा आ रहा है। दूसरी चीज ये हो गई कि मैं जो इंट्रोवर्ट अपब्रिंगिंग था मेरा, वो समहाउ ब्रेक हो गया, क्योंकि जब मैं ट्रैवल कर रहा था श्रुति, आ, एक चीज मुझे, बीइंग एन इंडियन एक सुपर पावर है अपने पास, है ना। वी आर वेरी कंफर्टेबल गेटिंग यस, पीपल टुगेदर, वी आर काम इन केओस, हम अडेप्ट बहुत जल्दी करते हैं ना। अडॉप्ट भी जल्दी करते हाँ। हैं, राइट। तो जब मैं ट्रैवल कर रहा था, इट केम नेचुरली टू मी कि नए दोस्त बनाने हैं तो मुझे लोगों को साथ में लाना है। या तो जाके मैं एक एक दोस्त बनाऊं अलग अलग से, या हाँ। तो मैं कम्युनिटी बनाऊं, कुछ इवेंट करवाऊं कि लोग इकट्ठा आ जाए, और उससे मेरे एक साथ काफी दोस्त बन जाए, काफी राइट। कनेक्शंस बन जाए। तो ड्यूरिंग दैट जर्नी मैंने हॉस्टल्स में, कोवर्किंग स्पेसेस में इवेंट्स वगैरह किए, दोस्तों के घर पे चाय पार्टी रखा। थाईलैंड में 10-15 फॉरेनर्स को हमने चाय पिलाया। आ, और वो खुश हो गए, मतलब बस। हमेशा के लिए कि दोस्त बन गए। अम, तो ये करते करते मुझे मेरा कम्युनिटी बिल्डर साइड भी पता चल गया। तो दो चीजें हो गई, एक तो अ, अपना लाइफ में क्या करना करना क्या है, है। उसमें उसमें क्लैरिटी, मतलब वो पहले से पता था, पर उससे पैसे कमाए जा सकते हैं, उस एक उसको डायरेक्शन आ गया करियर ना, बनाया जा सकता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है फिर। उसको करियर बनाया जा सकता है, ये पता चल गया। और उसको अगर बिजनेस बनाना है, करियर बनाना है, तो कुछ तो नया करना पड़ेगा, है ना। हम्म। और नया करना है, उसमें भी मजा आना चाहिए। तो आ, तो फिर पता चल गया कि यार मुझे ट्रैवल रिलेटेड और कम्युनिटी रिलेटेड कुछ बनाना है लाइफ में, एंड दिस इज माय लाइफ मिशन। फिर और दो चीजें हो गई। एक तो बहुत सारे फॉरेनर्स जिनको मैं मिलता था मेरे जर्नी के दौरान, उन्होंने मुझे इंडिया के बारे में, भारत के बारे में बहुत सवाल पूछे। भारत सेफ है क्या, इंटरनेट अच्छा है क्या, हाँ, एज अ वुमन मैं तो जा ही नहीं सकती। कि मैं अपने यहाँ के लिए भी एंड पूछने वाली थी आपको। तो तो मैंने सोचा यार, मिसकंसेप्शंस तो काफी है। और दैट वाज द टाइम 2016-17, जब हम्म। जियो मार्केट में आ गया था, इंटरनेट हाँ, एकदम से बूस्ट हो गया था हाँ। इंडिया में। तब मैंने सोचा कि यार द ओनली वे आई कैन प्रमोट एज एन इंडियन इंडिया टू आउटसाइड वर्ल्ड Right. एंड माई कम्युनिटी विच इज डिजिटल नोमैड्स is by giving them a safe environment to explore India, राइट। कि जिससे उनके प्री कंसीव्ड नोशंस जो है वो मिट जाए, जिनको इंडिया का एक्सपीरियंस मिले, जिनको कम्युनिटी मिले, और जिनको पीस ऑफ माइंड भी मिले, Right. है ना। पीस ऑफ माइंड में, क्योंकि ये सब डिजिटल नोमैड्स कौन होते हैं, जो लोग अपने लैपटॉप पे काम करते हुए दुनिया घूमते हैं, तो Right. उनको इंटरनेट अच्छा चाहिए, पावर बैकअप चाहिए, हाँ, क्योंकि पाँच सेफ्टी दिन तो उन्हें चाहिए। काम करना है, हम्म। राइट। दैट गिव्स देम पीस ऑफ माइंड। तो फिर कम्युनिटी बिकेम योर फर्स्ट क्लाइंट बेस क्या, मतलब यहाँ से भी बिजनेस आना शुरू हुआ या दे आर ओनली योर फ्रेंड्स? until that point, right, until I was just thinking about this, that okay, now कुछ ऐसा किया जाए, तब तक बिजनेस नहीं था कुछ, राइट। फिर मैंने सोचा चलो एक रिट्रीट किया जाए, हाँ। जिसमें दुनिया भर के लोग आ जाए, इंडिया एक्सप्लोर करे, आ, और फिर उनको प्रिडिक्टेबल इंटरनेट, पावर बैकअप, और यू नो कम्युनिटी, लाइक लोग, अच्छे लोग हो साथ में, अच्छा Right. खाना मिले, अच्छा क्लीन क्लीन रूम्स मिले, Right. सब कंफर्टेबल हो। तो मैंने रिट्रीट्स करना चालू किया। Wow. अ, ठीक है, रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज करना, उसमें क्या था, एक महीने के लिए मैं रिट्रीट करता था, एक महीना लोग आते थे बाहर से, अलग अलग देशों से। फिर साथ में रहते थे,
एक पॉपअप कोवर्किंग स्पेस बनाते थे हम, जहाँ भी रिट्रीट करते थे उधर बैठ के काम करते थे। शाम को साथ में खाना खाने जाते थे, वीकेंड्स पे हम एक्सप्लोर करते थे। और लोगों को बहुत मजा आता था। बहुत लोगों के प्री कंसीव्ड नोशंस जो थे इंडिया के बारे में वो मिट गए। काफी लोग वापस 3-4 बार, उसके बाद 3-4 बार आ गए भारत, क्योंकि उन्हें इतना अच्छा लगा। अम, तो तो ये इसके करते पहले हम हुए अपनी ये बेस। स्टोरी और कंटिन्यू करें, मैं लोगों को बोलना चाहती हूँ, मैं इस पॉडकास्ट का ये पार्ट 1 यहाँ पे कंप्लीट कर रही हूँ, और आज मैं किसी एकता कपूर के सीरियल की तरह आप लोग को एक इंटरेस्टिंग नोट पे हैंग करके रखूंगी, और आप लोग सेकंड पार्ट सुनेंगे, बट सर और हम इसको रिकॉर्ड करते रहेंगे। सो थैंक यू।